I don't know, sir. Don't add anything which is not on record or otherwise point it out from the documents. Please raise your arguments. Come out of the phobia of arguing bail application, sir. Please answer our query. Sir, आपके लोकल सोर्सेस तुरंत अपेलान नंबर 1 के पास पहुंच गए. वेरी गुड सर. आपके सोर्सेस बहुत फैले हुए हैं सर. sir, before I represent him before the Honorable Lordship, I thought to find out if he's available. आपने यार अच्छी बात है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं. Sir, ये आपकी पहुंच दूर दूर तक है. मतलब 40 किलोमीटर दूर गांव के लोग भी आपको जानते हैं. अच्छी बात है सर. Lordship. जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक्चुअली इनका टोटल जस्ट ये है कि दैट शी वाज हैविंग अ लव अफेयर विद को-एक्यूज्ड जालंधर, and since Jalandhar was the driver of Raju, and therefore Raju has been falsely implicated, and in fact it was the consent of the prosecutrix, and she is undisputedly major, aged about 20 years. Therefore, none of the accused is responsible for committing offense. So this is the basic bone of contention. So what do you want to add anything else? My Lordship, as per the FIR report, the page number 45, it has been mentioned, Rani, the prosecutrix statement has been taken, and she has mentioned that only the appellant number 2 has committed the offense, and it was appellant number 1 who helped the appellant number 2. So this is the prima facie established by the FIR itself. And on the second page, the missing person report, it had been already mentioned. The page number 48 of paper book, sir. Ji sir. Page 48. In the missing person report, it had been mentioned that she took some money, she took some jewelry, and she took some clothes from her home itself at the time when she left her house. नहीं, उसने ये नहीं कहा है कि वो कुछ ज्वेलरी ले गई है. वो तो शादी में गई है, ज्वेलरी पहनी हुई है. वो तो चांदी के ही कुछ पहने हुए हैं और एक 1200 रुपए लिए हैं. Right, sir. So the another thing is, ऐसा नहीं है कि that she collected the jewelry and the money and then she left the house. Sir, the defense witness number 1, sir, the para 1. Page number 40, sir. Yes, sir. The father of prosecutrix, along with the prosecution, tried to make a case that the girl is 17-year-old at the time of lodging the FIR, but it was discovered by the radiologist examination that she is a major lady, about 20 years. So the prosecution, the version of the father of the prosecutrix and prosecutrix is not sustained in the trial itself. The only the reason that the judgment went against us was whether in the time of 2004, whether if suppose prosecutrix is taking a rent room in 200 rupees, whether the owner will be providing the receipt or not. That was only the point of the shifting the judgment from one way to the another way. That is the DW2. And from where the prosecutrix was recovered, the ownership of that particular house was not established by the prosecution. ये जो DW1 है, इनके पिताजी तो राजू के घर काम करते हैं. But she was the only eyewitness who accompanied the prosecutrix. और राजू के ऊपर कई केस चलते हैं. तो राजू कौन सा है? But none belongs to the women related offenses. तो क्या हो गया? क्रिमिनल एक्टिविटीज के तो है ना. He was acquitted on those cases, my lordship. I don't know, sir. Don't add anything which is not on record or otherwise point it out from the documents. Please raise your arguments. Come out of the phobia of arguing bail application, sir. Please. My lordship. You are arguing the criminal appeal, not a bail application where you can say anything. Right, sir? Please point it out from the document to indicate that he was acquitted in all those cases. Sir, please point out the document from where you have ascertained that he was acquitted in all those cases. I had a word with appellant number 1, so I have to collect all those documents. So he mentioned like from where you got your got the mobile number. The appellant number 1. Yes, sir. Sir, after you appointed me the amicus curiae, from where you got the mobile number of appellant number 1? Sir, I tried from the local sources. अच्छा, आपके local sources भी जो है
Sir, इस एक्सटेंट तक जाते हैं, जरा मोबाइल नंबर बताना उसका, appellant number 1 का. sir, you appointed me amicus curiae for him as well. So No, before I please answer represent our him, query. Please answer our Sir. query. sir, आपके लोकल सोर्सेस तुरंत appellant number 1 के पास पहुंच गए. Very good, sir. sir, Then you Sir. had a talk with appellant number 1 on mobile phone. Please point out the mobile number of appellant number 1. sir, बताइए सर. sir, please, बताइए सर. appellant number Sir. 1 का मोबाइल नंबर. sir, 8349, ये appellant number 1 का मोबाइल नंबर है. sir, अच्छी बात है. आपके सोर्सेस बहुत फैले हुए हैं सर. sir, before I represent him before the Honorable Lordship, I thought to find out if he's available. आपने अपने सारे सोर्सेस जो हैं मोबिलाइज कर दिए. यार अच्छी बात है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं. Sir, ये आपकी पहुंच दूर दूर तक है, इस बात को क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहे हैं. I belong to the same town. I'm from Katni itself. So he's living about 40 kilometers from my place. So you want somebody else to contact this person. No, I just asked the local village men to find out his contact details, and they provided me. मतलब 40 किलोमीटर दूर गांव के लोग भी आपको जानते हैं. अच्छी बात है सर. My Lordship. But we cannot take cognizance of what you have said. My Lordship. But one thing is clear, that you have admitted that your appellant number 1 has a criminal history and number of cases were registered against him. So he mentioned to me that he had 2 cases of 324, 523, 324, 323, and he has been acquitted on these 2. Fine, sir. Fine, sir. So that lady also went along with you. The appellant number 2. DW1 also went along with you to attend the marriage. Right, sir. Okay, your appellant is having cordial relationships with the fellow villagers. No, the appellant number 2 is having the relationship with the prosecutrix. This is the admitted case in. We are not saying anything about number 2. We are saying about number 1. This DW1 has said that she went to attend the marriage along with the appellant number 1. Right, sir. I don't know, sir. It is for you to tell us. You are putting a cart before the horse. After this, the prosecutrix went along with the appellant number 2, the appellant number 1, and the lady went back to their homes. Okay. शादी देखने में राजू के साथ गई थी जी. वापस नहीं आई. आप तो लेकर गए हो लेडीज को साथ में. सर जब कोई लड़का किसी मेजर लड़की को जिस रिलेशनशिप में होता है लेके जाता है, तो वहां पे हमेशा कोई ना कोई होता है जो उसके घर जाकर के संदेशा देता है. आपसे हम कुछ और पूछ रहे हैं. ये जो है DW1 और कंप्लेनेंट, दे वेंट टू अटेंड अ मैरिज. एग्रीड. और ये आप उनको साथ लेकर गए थे. फ्रॉम the DW1 and appellant number 1 and the prosecutrix and appellant number 2. appellant number 2 कहाँ लिखा है कि appellant number 2 भी साथ गया था? वो तो बाद में कहीं मिल गए होंगे तो चले गए होंगे. ये भी बहुत पॉसिबल है. नहीं, इसने मेंशन किया है सर कि फिर रानी भाई जालंधर के साथ चली गई थी. पैरा नंबर में तो कहीं रास्ते में भी मिल सकते हैं, शादी में भी मिल सकते हैं, सब जगह मिल सकते हैं. और तो और सुनिए, जरा अच्छे से समझिए सर. शादी देखने में राजू के साथ गई थी और लौट कर आई थी जी. शादी से लौटकर रानी बाई के साथ 10 बजे आ गए थे. तो जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है तो आपके साथ तो वापस आ गई थी. तो जालंधर कहाँ ले गया उसको? सर द पैराग्राफ 5 ही तो देख रहे हैं हम लोग. मुझे नहीं मालूम कि राजू प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ करने में कब बंद हो गया था. मेरे पिता राजू के यहाँ काम करते हैं. राजू के ऊपर कई केस चलते हैं. फिर नहीं मालूम. शादी देखने में राजू के साथ गई थी एवं लौटकर आ गई थी. हम लोग शादी से लौटकर प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ 10 बजे आ गए थे. राइट. जब आप लोग तो शादी से वापस आ चुके थे तो जालंधर के साथ कब चले गई हो? सर जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है वो यही है कि राजू के खेत में ही वो we are considering the veracity of the defense evidence. Don't tell us about the prosecution case. Sir. Try to reconcile what you have said in paragraph 1 and what you have said in paragraph 5. Sir, I'm coming to that part as well.
If the prosecutrix had already left along with Jalandhar, then where was the question of returning back along with you? सर रात 10 बजे आ गए थे। हम लोग शादी से लौटकर प्रोसिक्यूटर्स के साथ, ये स्पेसिफिकली लिखा है आपने। एग्रीड जब आप प्रोसिक्यूटर्स अपने घर आ गई थी सर। तो फिर ये जालंधर के साथ कब चली गई, जो आपने पैरा 1 में बोला है? सर यहाँ हम लोग शादी से लौटकर प्रोसिक्यूटर्स के साथ 10 बजे आ गए थे, लेकिन उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि वो प्रोसिक्यूटर्स अपने घर पहुंच गई थी। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस, तो अगर आपका डिफेंस, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस स्टोरी, वो जो राजू का जो खेत वाला मकान था वहां पर वो रात जालंधर के साथ रुकी हुई थी, एंड आफ्टर दैट दे शिफ्टेड दैट लेडी एंड द appellant number 2 to another house in the another village. तो भाई साहब इन्होंने आपका साथ कब छोड़ा, प्रोसिक्यूटर्स ने, ये तो बता दो। सर इसने मेंशन किया ऑलरेडी। अच्छी बात है सर। एनीथिंग एल्स? सर शी मेंशन ऑन द 7th लाइन, मैं प्रोसिक्यूटर्स की बुआ लगती हूँ, मैं स्कूल पढ़ने कभी नहीं गई, एंड रिलेटिव जिसके यहाँ शादी हुई के मैं घर आ गई थी। आप उसकी बुआ लगती है, उसके बाद भी कभी किसी को नहीं बता रही थी? सर जब वो ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर्स की सर 2 बार शादी होकर के सर वो अनसक्सेसफुल मैरिज थी, ये 3rd अटेम्प्ट था सर उसका। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि क्यों परेशान हो रहे हो, वो तो फलाने के साथ चली गई है? सर ये बात सर प्रोसिक्यूटर्स के स्टेटमेंट में भी एस्टेब्लिश होती है कि सरोज इज द फ्रेंड ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स इज द ओनली आई विटनेस, और प्रोसिक्यूशन ने DW1 और DW2 को ना तो प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया, ना तो उनके स्टेटमेंट्स पुलिस के सामने लिए, उनके सामने कोर्ट के सामने करे। अभी तो आप डिफेंस विटनेस बना के लाए ना सर। तो आप ये बताइए ना कि जब आप तो उनकी बुआ लगती हैं सर तो परिवार वालों को क्यों नहीं बताया कि आप मत परेशान होइए, वो तो फलाने के साथ चली गई है? सर उनको बताया सर, तब तो उन्होंने ढूंढ करके सर जो पॉसिबल लोकेशंस थी वहां पर ट्रेस आउट किया। अच्छी एडमिटेड स्टोरी ऑफ सर जो PW2 का वकील साहब अपनी तरफ से गवाहियों में ऐड मत करिए। मॉलरशिप PW2 में आया हुआ है कि उन्होंने लोकल में पता किया, फिर यहाँ उनके लोकेशन में था तो फिर वो वहां पर गए। वकील साहब अपनी तरफ से गवाही में ऐड मत करिए। इसने आगे बोला मैंने किसी को नहीं बताया कि रानी के प्रोसिक्यूटर्स किसके साथ चली गई। अपनी तरफ से गवाहियों में ऐड मत करिए सर प्लीज। आप तो बुआ लगती थी तो आपको तो बताना चाहिए था ना, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो भाई, वो तो वहां चली गई है, आपने क्यों नहीं बताया? एनीथिंग एल्स सर? सर हमारा जो क्लाइंट appellant number 2 है सर, वो सजा और माफी मिलाकर के सर लगभग 7.5 साल सर उसके हो चुके हैं सर। सजा और माफी मिला के 5.5 साल नंबर 2 के जालंधर? नहीं सर, 7.5 सर। 7.5 जालंधर के हो गए हैं सर और राजू की? appellant number 1 की सर जो ट्रायल में सर अबाउट 6 और 7 मंथ्स, और आफ्टर कन्विक्शन भी 6 और 7 मंथ्स, तो करीब 1.5 साल लगभग सर। अच्छा। उसके फादर के लिए भी शी मेंशन इट, उसके फादर ने भी कहा कि उसने टाइप नहीं किया है वो। अच्छा है, सॉरी है साइन है सॉरी, है सर, है, देख गया, मिल गया। चल सो जी सर। सो लास्ट में सर यही है कि विथ रिस्पेक्ट टू appellant number 2 हम ऑलरेडी 7.5 साल से जेल में है सर, बेल जंप के कारण से। पिछले 4.5 साल से अभी बेल जंप के बाद में और उसके पहले का जो पीरियड था, और ही बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी। उसके 4 बच्ची, 1 बच्चे हैं, मुझे उनका जालंधर इज इन जेल सर। उसकी 3 बच्ची और 1 बच्चा है सर। और वो सर वो मजदूरी में सर काम करने सर ही वेंट आउट ऑफ स्टेट, तो डेट मिस हो गई और ही वाज नॉट हैविंग फोन एटसेट्रा, तो उसका घर वालों के पास आना जाना नहीं था, तो दैट्स व्हाई ही वाज एब्सेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कब अरेस्ट हुआ सर वो? सर 2020 इन द मंथ ऑफ February 29th। 7 साल 5 महीने, 25/8/24 को है। और इसका मिनिमम सेंटेंस क्या था उस समय? दिस इंसिडेंट इज ऑफ 2000 सर ही वाज जालंधर को सर 10 साल की सर सजा हुई थी, और राजू मिनिमम सेंटेंस क्या था उस समय, ये देखें 2004 का, 2004 के उसमें देना IPC।
चलो हम चेक कर लेंगे सर, उसका मिनिमम सेंटेंस अगर 10 साल होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, पर अगर 7 साल होगा तो देन यस देखते हैं उसको क्या करना है। सर वो मेजर लेडी सर विद कंसेंट सर गई हुई है सर, तो माय लॉर्डशिप से रिक्वेस्ट कर कंसेंट सकते में हैं। होगा तब तो हम एक्विट कर सकते हैं, पर लेकिन हम उसको रिड्यूस कैसे कर पाएंगे। तो माय लॉर्डशिप वी आर प्रेइंग फॉर द एक्विटल। ठीक है सर, देख लेते हैं। चलो ऑलराइट माय लॉर्डशिप।